How are you, beta? How are you, everyone? Very good. Good morning, बच्चे. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. I'm also good, beta. I'm also good, beta. I am fine. Thank you. What, बेटा? क्या बोल रहे हो धनवी? मम्मा Let's start today's class with a short prayer, everyone. चलो सभी लोग अपना कैमरास ऑफ करो या प्रेयर के बाद कर लेना, no issues, है ना? Sit straight, everyone. Join your hands. Close your eyes. जा नानी को बोल के लिया कुछ भी जा। Are muted. Join your hands, close your eyes and start doing prayer, beta. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavirvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Rub your hands, keep it on your eyes, your forehead and your head, beta. So, namaskar everyone. Let's start today's class with a beautiful topic, that is our chapter 1. Okay, that we have done. Right now, what we are doing is only the revision part. Before that, give me your attendance, everyone. Be attentive. Okay. I'm good, Vamsi. I'm good, beta. Chalo. Give me your attendance, everyone. Okay. I'm good, Vivian. Chalo. First, be attentive, okay? तब तक सभी लोग अपना literature निकाल लीजिए and we will do only one part of the worksheet that is remaining, okay? Rest we have done, beta. Now, pay attention here. देवांश आदेसारा. देवांश आदेसारा. देवांश आदेसारा. आरव भट्सना. Present. Riyan Bhilla. Riyan Bhimani. Riyan Bhimani not present. Riha present. Mishti Dangi present. Vivian Goria present. Mansh Jain present. Dwanil Kanani. Dwij Garia. Dwij, are you there, beta? Vivian, Mansh Jain, Dwanil Kanani, Naksh Kanani, Nelvin present. Darb Kasundra. Darb बेटा आपको. आस्था मेहता present. ईशान मुरादिया. ईशान.
Riyanithani, present. Yashioda, absent. Anna Pandey, present. Dhruvi Patel, present. Heer Patel, Ronit Patel, Ronit Patel, Ronit Patel, Siddharth Payak, Shreya Ranch, present. Dhanvi Ravashia, Manvi Kridit, Arohi Seth, Dhrumi Shreyasiya, Vamsi Thakur, Devansh Thoria. Devansh Thoria, not there. Okay. So, सभी ने निकाल लिया अपना ओके बेटा ओके सभी ने निकाल लिया अपना ऑरेंज बुक दैट इज योर लिटरेचर बुक यस और नो लो स्टार्ट डूइंग बेटा ओके टेक आउट पेज 11 I am going to read the chapter. You all have to be attentive with your pencils. Okay? मैं chapter read रही हूँ. You all have to be attentive with your pencils. पेंसिल के साथ attentive रहेंगे. जहाँ मैं पढ़ूंगी वहाँ का ध्यान होना चाहिए. कैमरास में नहीं होना चाहिए. ठीक है? कैमरास में मतलब आपके फोन पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए. ठीक है? जहाँ हम पढ़ रहे हैं आपके उस वर्ड पे ध्यान होना चाहिए. Take out your pencils. एंड उसको साथ में रीडिंग के साथ में रेयान व्हाट हैपेंड बेटा बेटा मैम के आगे बोलो रेयान चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास बेटा लेट अस रीड व्हाट अनीता एंड हर ब्रदर डू व्हेन दे विजिट अ बीच विद देयर फैमिली ओके एक स्टोरी है जब अनीता और रोहन बीच पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ अब देखो वहां पे क्या होता है मैक्सिमम ऑफ यू पीपल नो कि उन्होंने क्या किया था बट पेज नंबर 11 बेटा 11 जल्दी से निकालो आई एम गिविंग मिनट टाइम एवरीवन पेज नंबर 11 बेटा जल्दी से करो टेक आउट पेज नंबर 11 बेटा निकालिए अपने अपने बुक में सभी लोग देखेंगे ओके यू विल नॉट सी हियर एंड देयर और यू विल नॉट सी एनीवेयर ओके बेटा It is a lovely day. Anita and her brother Rohan are at a beach with their parents.
पढ़ा सभी ने मेरे साथ? रीडिंग किया मेरे साथ बेटा? इन इट इज अ लवली डे. Anita and her brother Rohan are at a beach with their parents. Okay? Hey, let us build a sand castle. Rohan is saying, hey, let us build a sand castle. Sure, I have a shovel and a bucket too. Okay, Rohan and Anita build a castle together. Okay, beta. Next is, wow, look, this room is for our grandpa and grandma. Rohan is saying to Anita, wow, they will tell us stories here. Okay. उन्होंने अनीता ने क्या बोला? वाव, they will tell us stories here. Rohan and Anita build a big castle, right? They have made a big castle, beta. This room is for mummy and daddy, and that one is for our playroom. ठीक है? That one is our playroom. We can keep all our toys here, right? They were discussing. Now, I am explaining you this page. Firstly, क्या होता है? It was a lovely day when these 4 people went to a beach. ये लोग कहाँ जाते हैं? बीच पे जाते हैं. बीच पे क्या करते हैं? मजे करने जाते हैं, right? Anita and her brother Rohan are at the beach with their parents. Anita and Rohan कहाँ जाते हैं? बीच पे with their parents, right? You have to listen everything, beta. You have to understand everything. Your examination question paper will be from here only. Okay? So don't make it lightly. Take it, understand it. अच्छे से इसको सुनो, अच्छे से समझो. ठीक है? रीडिंग में समझ नहीं आता, फिर भी आपको रीडिंग करना है, ये भी समझो. ओके बेटा? इन नेक्स्ट कैप्शन, व्हाट इज देयर इन नेक्स्ट बॉक्स? इट इज दे, हे, लेट अस बिल्ड अ सैंड कैसल. रोहन बोलता है अपनी बहन से कि चलो हम लोग सैंड कैसल बनाते हैं. श्योर, अनीता क्या बोलती है? श्योर, I have a shovel and a bucket too. Okay, बनाते हैं. मेरे पास बकेट भी है और शोवल भी है. शोवल देखो क्या होता है? एक डिगिंग टूल होता है बेटा, जो हमें प्लगिंग, लाइक हम लोग अगर हम सीड्स को डालते हैं, अगर हम कुछ भी जर्मिनेशन में लगाते हैं तो इसका यूज होता है. आपके घर में अगर प्लांट्स होंगे तो आपकी मम्मा बीच बीच में उसको क्या करती होगी? खुदाई करती होगी. उसको खुदाई भी बोलते हैं, डिगिंग बोलते हैं ना. तो शोवल की मदद से ये हो पाता है. लाइक यू कैन टेक आउट द अर्थ फ्रॉम द मदर अर्थ, राइट? रोहन एंड अनीता बिल्ड अ कैसल टुगेदर. इन दोनों ने मिल के कैसल बनाया. अकेले तो ये नहीं बना सकता था, राइट? यस और नो बताओ, बना सकता था क्या अकेले बहुत बड़ा कैसल? टेल मी बेटा, अकेले बना सकता था? नो, बिकॉज we need people to make a big castle. Okay? Now, इसने क्या बोला? रोहन ने कैसल बना दिया, राइट? उसके बाद इसने पूछा, ये देखो, पूछा नहीं, बताया. किसको बताया? अनीता को. कि देखो ये वाला कमरा हमारे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा का है, राइट? इसमें हमारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रहेंगे. ओके? एंड अनीता ने फिर क्या बोला? वाओ, फिर तो हमें वहां से उनसे स्टोरी सुनने को मिलेगा डेली डेली, है ना? उन्होंने क्या बोला? कि फिर तो उनसे हमें स्टोरी सुनने को मिलेगा हर दिन. नेक्स्ट क्या होता है? फिर उन्होंने डिसाइड किया मम्मा डैडी का रूम, मम्मा पापा का रूम डिसाइड किया कि यहाँ पे हमारे मदर फादर रहेंगे. उसके बाद उन्होंने अपना प्ले रूम भी डिसाइड किया. ठीक है? 2 कमरे यहाँ पे डिसाइड किए कि देखो इस कमरे में हमारे मम्मा पापा रहेंगे और इसमें हमारा प्ले रूम रहेगा. फिर अनीता क्या बोलती है? हाँ, जहाँ पे हम अपने टॉयज रखेंगे.
आप लोग प्ले रूम में अपने टॉयज रखते हो? यस और नो बेटा? डू यू ऑल कीप योर टॉयज इन योर प्ले रूम या इधर उधर रखते हो? किसी भी रूम में रखते हो क्या बेटा टॉयज? नहीं ना, मम्मा डांटेगी वरना अगर किसी भी रूम में रखोगे तो। यस और नो? मम्मा डांटती है ना जब इधर उधर रखते हैं तो बेटा। सो यू हैव टू कीप योर टॉयज एट योर वेयर बेटा? प्ले रूम। प्ले रूम में अपने टॉयज रखने चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, एक ही जगह पे रखने चाहिए सो दैट घर बिखरा ना लगे। राइट नाउ वेयर डज द स्टेयरकेस गो? अब देखिए पूछती है, उसने स्टेयरकेस देखा होगा बना हुआ सैंड कैसल में, तो अनीता पूछती है ये स्टेयरकेस कहाँ जा रहा है? तो रोहन बोलता है इट गोज टू द बेसमेंट, वी कैन प्ले हाइड एंड सीक देयर, नोबडी कैन कैच अस देयर। अच्छा ये बताओ किस किस के घर के नीचे बेसमेंट है? किस किस के घर के नीचे बेसमेंट है? टेल मी बेटा इन द चैट बॉक्स। है ना? बताओ बेसमेंट में क्या क्या होता है? बेसमेंट में बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिसमें हम लोग छुपन छुपाई आराम से खेल सकते हैं, है ना? थोड़ा सा अंधेरा होता है। यस और नो? तो उसमें आप आराम से छुपन छुपाई खेल सकते हैं एंड आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं। राइट? यस और नो? यस और नो बेटा? कार्स बाइक्स होते हैं उसके पीछे भी हम लोग छुप सकते हैं। मजा आता है ना अगर आप लोग को अगर आपको खेलने को बोल दे कि आप जाओ बेसमेंट में खेलो तो आप आराम से खेल पाओगे हाइड एंड सीक। यस और नो? विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी कंप्लेन। यस और नो बेटा? हाँ, बिकॉज वहां पे बहुत सारी जगह है छुपने के लिए। नाउ मॉम एंड डैड आर कॉलिंग, वी शैल लीव नाउ। इन्होंने क्या बोला? मॉम एंड डैड उनको बुला रहे हैं वहां पे। उनको बोला चलो बहुत देर हो गई, चलो अब घर चलते हैं, है ना? तो दे लीव लाइक अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट्स और किड्स, दे लीव फ्रॉम दी बीच बेटा। समझ में आया स्टोरी? समझ में आया बेटा स्टोरी? समझ में आया बेटा स्टोरी आपको? किस किस को कहीं डाउट आया? जस्ट आस्क मी बेटा। एनी डाउट एनीवेयर जस्ट आस्क मी। Any doubt? No? Very good Viha. Everybody has basement basically. जो भी अपार्टमेंट में रहता है उन सबके पास बेसमेंट मिलेगा। यू कैन आराम से आप लोग इससे लाइक सोच सकते हो कि कैसे आप खेल पाओगे बेसमेंट में। राइट? You can compare your situation in the basement beta. Now this is all about this chapter. Now let's revise the joint words. Joint words में किस किस को डाउट है? Joint words में किस किस को डाउट है बेटा? जल्दी पूछो। किसी को डाउट है joint words में? It is your revision बेटा, फिर दिक्कत होगी नहीं कर पाओगे तो। मिष्टी बेटा आपको डाउट है? ओके, कहाँ डाउट है? क्या नहीं करना आता बताओ? आई एम अनम्यूटिंग यू मिष्टी। आप बहुत दिन एब्सेंट भी थे ना बेटा इस वजह से। चलो टेल मी बेटा कहाँ पे डाउट आ रहा है मिष्टी? बोला हाँ क्या बोला आपने? जॉइंट वर्ड्स है ना यहाँ पे, इसमें किस किस को डाउट है ये पूछा मैंने। मुझे क्या पूछना है बताओ? मुझे पूछो क्या पूछना है। पूरा ही नहीं आता या कुछ नहीं आता? नहीं आता कुछ भी? फुटबॉल। हाँ जी शूलेस। हाँ अच्छा, आपको एक सेकेंड मैं आपको समझाती हूँ, अब समझो। डोंट रीड बेटा, मैं समझा रही हूँ, ठीक है?
देखो क्या मैं आप सबका भी रिवीजन हो जाएगा। जब हमारे पास कंपाउंड, जब हम लोग ज्वाइंट वर्ड्स को हम लोग कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग दो छोटे छोटे वर्ड्स को, जो दो छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, तब एक बड़ा वर्ड बनता है। दैट बड़ा वर्ड इज ऑल्सो हैव सम मीनिंग, उसका भी एक मीनिंग होता है, ठीक है। यस और नो? जैसे कि डॉग और हाउस। डॉग और हाउस दो अलग अलग वर्ड्स है। डॉग है, डॉग को आप सबको पता है डॉग को, डॉग कौन होता है, राइट। एंड हाउस क्या होता है वो भी आपको पता है, जिसमें आप रहते हो। तो ये दो क्या है, अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स है। जब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, डॉग हाउस, राइट। वेरी गुड बेटा मिष्टी, वेरी गुड। उसको फिर मिला के क्या बनेगा, डॉग हाउस। तो इसी तरीके से अलग अलग, जैसे कि शू लेस की अगर हम बात कर रहे हैं, शू को क्या कहते हैं, जूता। लेस क्या होता है, उसमें जो बंधा रहता है। तो ये दो का अलग अलग मीनिंग है, राइट। जब इसको हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, शू लेस। इन दोनों को मिला देना है, टू स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को मिला देना है, दैट विल बिकम योर बिग वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज नोन एज ज्वाइंट वर्ड। समझ में आया सबको? अब आया समझ में सबको? यस और नो मिष्टी, आया समझ में बेटा? ओके बेटा, नाउ स्विच ऑफ योर कैमरा। सबको समझ में आया ज्वाइंट वर्ड्स किसे कहते हैं नाउ? और किसी को डाउट है? जस्ट आस्क मी बिफोर योर एग्जाम बेटा, फिर मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे फिर एग्जामिनेशन में, ठीक है। दो छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं, दैट बिकम योर ज्वाइंट वर्ड्स। जैसे देखो लेडी है, लेडी देखो ये फिजिकली देखो ऐसी दिखती है, और ये क्या है, बग। बग जो करता है ना फ्लावर्स के बीच में, ब्लैक कलर का होता है, इसमें तो रेड बनाया है। एक रेड कलर का भी होता है, उसको हम लोग फेल पास बर्ड बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज बग। तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है बेटा, है ना। बट अगर हमने इसको मिला दिया तो क्या बना, लेडी बग। ओके, ऐसे ही बटर एंड फ्लाई। बटर का अपना मीनिंग है ना, बटर का अपना मीनिंग है। यू ऑल नो बटर हम खाते हैं ब्रेड के साथ लगा के। एंड फ्लाई इज अनदर थिंग। फ्लाई कौन करता है, बर्ड, है ना। बर्ड में कई सारे बर्ड्स करते हैं, सो दैट इज नोन एज फ्लाई। सो दीज टू हैव देयर ओन मीनिंग, बट जब हम इसको मिला देते हैं तो क्या बनता है, कॉमन मीनिंग, दैट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक न्यू जीव बन जाती है, राइट। बटरफ्लाई सबने देखी है, यस और नो बेटा? बटरफ्लाई सबने देखी है ना, है ना। तो नया वर्ड बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्ड्स कहते हैं। जब दो छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स एक वर्ड बना दे, बड़ा वर्ड जिसका एक और मीनिंग हो, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग वर्ड। यस और नो? ओके। ऐसे ही देखो रेन, रेन मीन्स बारिश, और देखो ये बो बना हुआ है, राइट। सो इसको क्या कहते हैं, रेनबो। जब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, रेनबो। यस और नो बेटा? यस और नो बेटा, टेल मी, समझ में आया सबको? Shall we move to our poem part? Come to our poem part beta, that is in page number 16. Come to our family special part, that is your poem part beta. Come to page number 16, 1616. चलो निकाल लिया सभी ने, यस और नो बेटा? टेल मी फास्ट। Families are people. The poem name is Family Special. Families are people who care about you. My family is special. Your family is too. ठीक है?
क्या बोल रहा है? फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? ठीक है, चलो एक्सप्लेन बाद में करेंगे, फर्स्ट लेट अस रीड। अब बताओ, इन फर्स्ट पैराग्राफ टेल मी द राइमिंग वर्ड्स बेटा, टेल मी द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ बेटा। पहले आपको राइमिंग वर्ड नहीं आता था, राइट? अब यू ऑल नो द राइमिंग वर्ड। टेल मी, किसका साउंड एक जैसा है, किसकी एंडिंग एक जैसी है इन द फर्स्ट पैराग्राफ? इन द फर्स्ट पैराग्राफ टेल मी बेटा। वेरी गुड, यू एंड टू, यू एंड टू, यू एंड टू। नहीं बेटा, आर और केयर नहीं होगा, नो नो नो। हमेशा राइमिंग वर्ड एंड होता है, हमेशा एंड में आता है। एंडिंग वर्ड को हम लोग देखते हैं फॉर द राइमिंग वर्ड, ठीक है, नॉट फॉर एवरीथिंग। आप बीच के फैमिली फैमिली इसको थोड़ी देखोगे, नो, यू हैव टू सी द लास्ट वन, लाइक यू एंड टू, दोनों का साउंड एक जैसा आ रहा है, राइट? ऊ ऊ आ रहा है, ऊ ऊ, टू यू, you too, ठीक है बेटा। Now come to next paragraph. Mother and father and sister and brother, grandma, grandpa and many others. It is so much fun to be together, right? So this is all about the poem beta. Now इसमें बताओ कौन सा है राइमिंग वर्ड? राइमिंग वर्ड बताओ कौन सा है? फादर एंड मदर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। और कौन बताएगा? सिस्टर एंड ब्रदर। अर, ये लास्ट जो होता है ना एंडिंग साउंड, उसी से हम लोग अपना राइमिंग वर्ड पाते हैं, राइट? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। प्लीज आर पीपल, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं हु केयर अबाउट यू। माई फैमिली इज स्पेशल, योर फैमिली इज टू। पोएट जो है, जो पोएम लिख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? मेरा फैमिली बहुत स्पेशल है, आप लोगों का भी स्पेशल है, राइट? वो दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों की फैमिली बेस्ट है, स्पेशल है, राइट? मदर एंड फादर एंड सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, कौन कौन रहता है फैमिली में? ये सभी लोग, मदर एंड फादर एंड सिस्टर एंड ब्रदर, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड मेनी अदर, ये सभी लोग कहाँ रहते हैं? फैमिली में। इस फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में, और यू कैन से द बिग फैमिली। It is so much fun to be together. सबके साथ रहने में मजा आता है, राइट? बट मजा आता है कि नहीं आता है? अगर हम लोग बिग फैमिली में रहें तो हमें मजा आएगा कि नहीं आएगा बेटा? क्योंकि हमारे वहाँ पे कजिन्स होंगे, हमें खेलने को कंपेनियन मिल जाएगा, है ना? हमारी केयर करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, राइट? यस और नो बेटा? यस और नो बच्चे? यस और नो बेटा, टेल मी। यस, सो फैमिली, बिग फैमिली में हमें मजा आता है बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑफ कजिन्स, वी कैन प्ले टुगेदर, वी कैन ईट टुगेदर, वी कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर, राइट? Yes or no beta? Yes, okay. So this is all about today's class. Now we will do one छोटा सा worksheet निकालिए सभी. But before that, listen the homework beta. Homework में आपको क्या करना है? You have to read this poem as well as that chapter beta. You have to read that chapter as well as this poem. ठीक है? You have to read the chapter as well as the poem. करोगे सभी रीडिंग? चैप्टर 1 की रीडिंग करोगे? Yes or no? उसी में से पेपर आएगा, फिर देखना, फिर अगर आप नहीं कर पाओगे that will be your responsibility. इसलिए इससे बेटर है कि आप अभी से पढ़ के रखो.
ठीक है बेटा. Now take out your worksheet beta. Your homework will be reading of your chapter 1 full, poem B or this part B. ठीक है. Now take out worksheet page number 20. Page number 20. Take out beta. I'm giving you 1 minute time. इसमें हमें short questions करने हैं. Word question. Okay? जल्दी से निकालिए सभी. निकालिए सभी ने. yes or no? टेल मी, निकालिए सभी ने बेटा. वर्कशीट निकाला सभी ने. चलो लेट्स डू इट. करें अब हम स्टार्ट. पेज नंबर 2020. पेज नंबर 2020. पेज नंबर 2020. अब कोई पूछेगा तो नहीं ना कि कौन सा पेज नंबर. चलो. What do Anita and Rohan use to build the sand castle? अनीता और रोहन ने क्या किया, क्या क्या यूज किया to build a sand castle? बताओ, कौन बताएगा. अनीता और रोहन ने क्या यूज किया था बेटा सैंड कैसल बनाने में. What they have used? I want answer from your side बेटा. Tell me in the chat box. Very good beta. Bucket and the shovel. Very good Jian. Write down BUCKET bucket and SHOVEL shovel. Very good Vivian. It's bucket and shovel. BUCKET bucket and SHOVEL shovel. Okay. Write down BUCKET bucket AND and SHOVEL shovel. Bucket and the shovel. Clear? Next question is, what do Anita and Rohan use to build the sand castle? It is same question beta. इसका आंसर भी सेम होगा. Bucket and the shovel. ठीक है बेटा. Next is, what does the teacher say about the handprint animals? बताओ टीचर क्या बोल रही थी जो हमने हैंडप्रिंट आर्ट पढ़ा था. What teacher used to say बेटा, क्या बोल रही थी. हाँ बेटा, शॉर्ट आंसर लिखना है, शॉर्टेस्ट लिखना है, शॉर्टेस्ट. 1 से 2 वर्ड का हो जाए, दैट्स इट. राइट. नेक्स्ट इज, दे लुक रियल. टीचर ने क्या बोला कि ये रियल लग रहा है. क्या रियल लग रहा है. हैंडप्रिंट आर्ट. बच्चों का हैंडप्रिंट आर्ट क्या लग रहा है, रियल. सो व्हाट टीचर सेड इज, दे लुक रियल. सो राइट डाउन THEY दे, LOOK look, REAL real. Okay, write down everyone. THEY they, LOOK look, REAL real. Okay, लिखा सभी ने. They look real. They look real. Next is, last one is, where does Foxy Loxy take the animal? Foxy Loxy कहाँ लेके गया बेटा. Very good Vivian. They take them to his den, ताकि वो उनको खा जाए. वो राजा के पास तो लेके ही नहीं गया, वो den में ले गया. ठीक है. So write down DEN den. Write down DEN den.
लिखा सभी ने? लिखा बेटा सभी ने? Very good beta. So this is all about today's class. You all have to do the reading part of chapter 1, that is at the beach, and उसके साथ poem भी पढ़ेंगे, and मैं एक छोटा सा quiz दूंगी so that आपकी practice हो जाए exam की, है ना? MCQ based quiz दूंगी. With that बेटा क्वेश्चन 2 सेम है वंशी, बकेट एंड शोवल देखो सेम क्वेश्चन है, आप देखोगे तो पता लगेगा. These two questions are same. So I'll give you the quiz of 10 marks or 5 marks, whatever I will make. I'll send you बेटा, उसको आप लोग करना, उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है? यस और नो, उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम की. That will be your homework. First homework is your reading part. Second homework is your solving the quiz. Now join your hands everyone. Join your hands everyone beta. Let's end up the class with a short prayer of Sarve Bhavantu Sukhinah. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. Rub your hands, keep it on your eyes, your forehead and your head beta. Namaskar everyone, take care beta. Bye bye and we'll meet you soon. Bye बच्चे.